Good morning students. Today we are going to do lesson number 7, the Punjab, a glimpse. Let's start. Balle balle oh balle balle. Mr. Matthew had taken his students on a trip to Amritsar. Children, you must have recognized this famous folk dance of Punjab, said Mr. Matthew, pointing out at the भंगड़ा डांसर्स इन फ्रंट ऑफ दी पंजाब पेविलियन। अब वो क्या बोल रहे हैं, उनके सर उन्हें क्या बोल रहे हैं बच्चों के कि देखो बच्चों, वो भंगड़ा कर रहे होते हैं कुछ लोग, उनके तरफ क्या करते हैं, इशारा करके बोलते हैं मिस्टर मैथ्यू कि छात्रों ये देखो कि जब वो उनको लेके जाते हैं, यात्रा पे लेके जाते हैं, अमृतसर की ट्रिप पे लेके जाते हैं, तो वो क्या उनको दिखाते हैं कि देखो वो पंजाब का फोक डांस है भांगड़ा, वो ऐसे जो होता है कि भांगड़ा होता है। और अब तुम इस पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य को जरूर पहचान गए होगे। Yes sir, we saw this folk dance during the Republic Day celebration this year, replied the children. This dance is full of energy. It shows the great zest for life of the Punjabis, said Mr. Matthew. Punjabis are very self-respecting and hard-working people. You will never find them begging in the streets. They are also very brave and never show their bag in the battlefield. अब वो इसमें क्या कहते हैं कि बच्चों ने उत्तर दिया, हाँ सर, हम इस लोक नृत्य को हमने गणतंत्र दिवस के समारोह में देख चुके हैं। मिस्टर मैथ्यू ने कहा, यह नृत्य जोश से भरा है, यह पंजाबियों के जीवन के प्रति अति उत्साह को दर्शाता है। पंजाबी स्वाभिमानी और बहुत ही परिश्रमी लोग होते हैं। तुम इन्हें गलियों में भीख मांगते नहीं देखोगे। वे बहुत बहादुर लड़ाई के मैदान में कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाते। According to history of Punjab, According to the history of Punjab, the Punjabis have faced all the foreign invasions boldly. During the struggle for India's freedom, Punjab gave the country great heroes. They include patriots such as Lala Lajpat Rai, Bhagat Singh Sukhdev, Udham Singh, Kartar Singh Sarabha and many others. We call Lala Lajpat Rai Sher-e-Punjab and Bhagat Singh Shaheed-e-Azam. All these brave sons of Punjab sacrificed their lives for their country. Lala Lajpat Rai died as a result of the brutal lathi charge while he was leading possession against the British in 1928. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were hanged for raising their voice against the British cruelties. Bhagat Singh was just 26 years old then. Children, look at the portraits of all freedom fighters in the pavilion. सी स्टूडेंट्स, अब वो क्या कहते हैं कि पंजाब के इतिहास में अनुसार पंजाब के लोगों ने अब वो इसमें क्या कहते हैं कि पंजाब के इतिहास के अनुसार पंजाब के लोगों ने सभी विदेश की आक्रमणियों को दृढ़ता से सामना किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब ने देश के महान नायक दिए। उनमें लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा जैसे तथा कई अन्य देशभक्त शामिल थे। हम लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब तथा भगत सिंह को शहीद आजम कह के पुकारते हैं। पंजाब ने इन सभी वीर पुत्रों को अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में अंग्रेजों के विरुद्ध एक जुलूस का नेतृत्व करते समय उन पर किए गए लाठी चार्ज से हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, जैसा कि हम जानते हैं, उनको फांसी दे दी गई थी क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। और भगत सिंह, आपको पता, तब सिर्फ 26 वर्ष के थे। बच्चों, तुम पंडाल में इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र देखोगे। देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट। सर, व्हाट इज दिस बिल्डिंग? Sir, what is this building that has marks all over its walls? asked Chintu. चिंटू क्या पूछता है कि श्रीमान जी, सर, यह भवन कौन सा है जिसकी दीवारों पर पूरी तरह निशानों से भरी पड़ी है? चिंटू ने पूछा। Then Mr. Matthew told Chintu, this is the famous Jallianwala Bagh of Amritsar and these are bullet marks. On 13 April 1919, a crowd of around 20,000 people had gathered for a public meeting here. They included men, women and children. The British General O'Dwyer
came there with his armed soldiers. He blocked all the exit points. Then he ordered his men to start firing without giving any warning to the people gathered there. About 1,000 people were killed and more than 1,500 were wounded. देन मिस्टर मैथ्यू, अब वो इसमें क्या कहते हैं कि मिस्टर मैथ्यू ने चिंटू को बताया कि ये अमृतसर का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग है। ये गोलियों के निशान यहाँ 13 अप्रैल 1919 को लगभग 20,000 लोगों की एक भीड़ के सार्वजनिक सभा के लिए यहाँ एकत्रित हुई थी। वो मेरे हिसाब से बैसाखी से थोड़े दिन पहले या थोड़े दिन बाद की बात थी, मतलब बैसाखी से पहले की बात थी ये। तब 20,000 लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। इसमें स्त्री, पुरुष तथा बच्चे शामिल थे। ब्रिटिश जनरल ओडायर अपने बंदूकधारियों के साथ वहाँ पहुँचा। उसने बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए। तो बिना कोई चेतावनी दिए उसने अपने बंदूकधारियों को भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 1,000 लोग मारे गए और 1,500 से अधिक लोग घायल हो गए। Mr. Matthew told his students about the partition of India in 1947. He said the people of Punjab suffered due to partition of the country on the eve of independence in 1947. There was a terrible bloodshed. There was a terrible bloodshed. Thousands of people had to leave their homes and live in refugee camps. However, the Punjabis worked hard and started life afresh. They played a great role in rebuilding the state. They made Punjab the granary of India with their hard work and agricultural skills. They brought about a green revolution in the country. Soon India became a developing country and it was mainly due to the hard work of Punjabis. अभी वो क्या कहते हैं, मिस्टर मैथ्यू ने क्या कहा अपने छात्रों से कि 1947 के बंटवारे के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पंजाब को 1947 में भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या के समय अनेक कष्ट उठाने पड़े। यहाँ भयंकर खून खराबा हुआ, हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। ठीक है, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, शरणार्थियों की तरह रहना पड़ा। फिर भी वीर पंजाबियों ने कड़ा परिश्रम किया और जीवन की नए सिरे से शुरुआत की। उन्होंने राज्य का पुनर्निर्माण किया और एक महान भूमिका निभाई। उन्होंने कड़ी मेहनत और कृषि कौशल से पंजाब को भारत का अन्न भंडार बना दिया। वे देश में हरित क्रांति लाए। शीघ्र ही भारत एक विकासशील देश बन गया और इसका मुख्य कारण पंजाबियों का कड़ा परिश्रम है। थैंक यू।